Yes, good morning everyone. Today we will discuss our new chapter of class 11th, that is Introduction of Accounting. Means that meaning and objectives of accounting. As you all know, you have opted your commerce subject, in which accountancy is a most and important practical subject for you. So one who want to start a business, it's very important for him to know about accounting, because accounting help him to know the profits and losses for the business. Before starting the chapter, I want to ask one question in which you will give the answer. The first is, what is the main objective of the business? And you everyone know, the objective of the business is to earn profit. Sometimes it may be loss, but main objective to earn profit. So the first question arises, why there is a need for accounting. Accounting हमें क्यों पढ़नी चाहिए? Whenever we are doing anything, first things come to our mind that why there is a need to do this. इसकी हमें क्यों ज़रूरत है? यदि हमें why का क्वेश्चन मिल जाता है तो हमें आगे उसमें कभी भी प्रॉब्लम नहीं आती है. तो माई फर्स्ट क्वेश्चन इज, वाई देर इज़ ए नीड फॉर अकाउंटिंग. हमें अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट क्यों है? सो फर्स्ट टॉपिक इज नीड फॉर अकाउंटिंग. अकाउंटिंग की रिक्वायरमेंट हमें क्यों है? द फर्स्ट एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर. सो एज आई टोल्ड यू, ईच एंड एवरी बिजनेस स्टार्ट्स with an objective to earn profit. हर एक बिजनेस प्रॉफिट अर्निंग के लिए शुरू किया जाता है. देयर आर एक्सेप्शंस ऑल्सो, दोज आर द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, बट मेनली द मोस्ट ऑफ द objective of the business is to earn profit. So accounting is needed to find out the profit or loss of a business at the end of the accounting year. So in this definition I told you, the objective of the business is to earn profit and to know about the profit with the help of accounting. So how accounting is helpful in find out the profit? As you all know that in a particular year there are so many transactions in a business, like purchases, like sales, like so many expenses, like so many incomes. So all these items cannot be find out profit and loss without recording in the books. क्या हम इन सारे ट्रांजेक्शन्स को बिना रिकॉर्ड किए हुए प्रॉफिट लॉस पता कर सकते हैं? ऑफ वन ईयर ट्रांजेक्शन, एक साल तो बहुत बड़ी बात है, क्या आप एक महीने के ट्रांजेक्शन्स भी याद रख सकते हैं कि हमने कितना गुड सेल किया, कितना परचेज किया, क्या एक्सपेंसेस किया, क्या हमारी इनकम रही? That's why accounting is helpful to record all the transactions in a systematic manner, so that at the end of the year we can find out our profit and loss. So why there is a need for accounting? So need for accounting is to record transactions, all the transactions, to record all the transactions to find out profit or loss. The complete definition you will find out in the notes provided to you, because here in the class it's not possible to dictate each and everything regarding the topic, because हम यदि एक टॉपिक को जितना बड़ा खींचना चाहें उतना बड़ा हम खींच सकते हैं. तो अभी मैं आपको जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस टॉपिक की वो सारी बता रहा हूँ. इसके अलावा ज़्यादा आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जो नोट्स आपको प्रोवाइड किए हुए हैं उन नोट्स को आप अच्छे से पढ़ेंगे. सेकेंड थिंग, सो फर्स्ट ये आपको क्लियर हो गया वाई देयर इज अ नीड फॉर अकाउंटिंग. अकाउंटिंग की नीड क्यों है? टू रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन्स सो दैट वी कैन फाइंड आउट प्रॉफिट और लॉस एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर, ताकि हम प्रॉफिट लॉस पता कर सकें. ठीक है. नाउ द सेकेंड एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज
डेफिनेशन और मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, कि बेसिकली अकाउंटिंग का मीन क्या होता है, अकाउंटिंग की जरूरत क्यों है, ये तो हमने पढ़ ली, बट द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की हमें जरूरत क्यों है। सो अकाउंटिंग की डेफिनेशन और मीनिंग आप ध्यान से सुनेंगे, और हर एक वर्ड में, अकाउंटिंग के हर एक वर्ड में एक एक चैप्टर आपके आएगा, ठीक है। सो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग इज, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, accounting is an art as well as science of identifying, then measuring, then recording, then classifying, then summarizing, then interpreting and communicating. Now we'll discuss this definition with the help of all these words. Accounting is an art. So सबसे पहले हम बात करेंगे आर्ट क्या होता है। आर्ट सिंपल लेमैन लैंग्वेज में हम समझ सकते हैं किसी भी काम को करने का एक स्पेसिफिक तरीका, ठीक है। जैसे हम बोलते हैं कि उसमें डांस की आर्ट है, जैसे उसमें सिंगिंग की आर्ट है, तो वैसे ही आर्ट का मतलब होता है किसी भी काम को करने का एक सिस्टमैटिक तरीका, एक अच्छा तरीका, एक बेस्ट तरीका। तो अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट, बिकॉज इन अकाउंटिंग ईच एंड एवरी वर्क इज टू बी डन इन अ सिस्टमैटिक वे, सिस्टमैटिक मैनर। ऐसे नहीं हम कैसे भी जब हमारी इच्छा हुई तभी कोई भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं, नो, इन अ सिस्टमैटिक मैनर, इन द डेट वाइज मैनर, ओके। सेकेंड वन इज साइंस। साइंस आपने पढ़ी हुई है 10th क्लास तक, साइंस का मतलब हिंदी में होता है विज्ञान, बट इट्स नॉट द प्रॉपर मीनिंग ऑफ साइंस। प्रॉपर मीनिंग ऑफ साइंस इज विच इज बेस्ड ऑन प्रिंसिपल्स, बेस्ड ऑन रूल्स। साइंस वांट्स प्रूफ, कि हर एक चीज का प्रूफ होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड साइंस। तो अकाउंटिंग में भी साइंस का क्या रोल है, अकाउंटिंग इज ऑल्सो बेस्ड ऑन रूल्स एंड प्रिंसिपल्स, विद द हेल्प ऑफ दोज रूल्स वी हैव टू मेक और अकाउंटिंग, हमें उन रूल्स के बेस पे अकाउंटिंग करनी होती है। इज इट क्लियर? नाउ द नेक्स्ट थिंग इज आइडेंटिफाई। सो इन आइडेंटिफाई मीन्स किसी भी चीज को पहचानना। सो अकाउंटिंग में हम क्या आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाइंग बिटवीन पर्सनल ट्रांजेक्शंस एंड द बिजनेस ट्रांजेक्शंस। वी हैव टू रिकॉर्ड ओनली दोज ट्रांजेक्शंस विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू द बिजनेस। सो आइडेंटिफाइंग का मतलब होता है बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को पहचानना, और जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स होंगे उन्हें ही हम बिजनेस की बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। आफ्टर दैट मेजरिंग। मेजरिंग का मतलब होता है किसी भी चीज़ को नापना, ठीक है। जैसे मिल्क, दूध को हम नापते हैं लीटर में, कपड़े को हम नापते हैं मीटर में, वैसे ही अकाउंटिंग में जो मेजरमेंट होता है दैट इज इन टर्म्स ऑफ मनी। तो जो ट्रांजेक्शन्स मॉनेटरी टर्म, मनी टर्म में होगा, हम उसे ही रिकॉर्ड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं कि जैसे मैंने पेन खरीदा और मैंने 10 रुपए का पेन खरीदा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू ट्रांजेक्शन्स? मॉनेटरी टर्म, फर्स्ट ट्रांजेक्शन डज नॉट कैरी एनी मनी, बट द सेकेंड ट्रांजेक्शन कैरीज मनी, लाइक 10 रुपीज़ का पेन खरीदा, तो मेरे पास ये पता चल गया मुझे कि जो मेरे पेन की वैल्यू है दैट इज ऑफ 10 रुपीज़, तो मैं ट्रांजेक्शन जो रिकॉर्ड करूंगा वो 10 रुपीज़ के अकॉर्डिंग करूंगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस विदाउट मनी हम नहीं निकाल सकते हैं। सो मेजरिंग मतलब इन टर्म्स ऑफ मनी, तो केवल वो ही ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगा जो मॉनेटरी टर्म में होगा। द थर्ड वन इज रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग का मतलब होता है टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड करना बुक्स में। कब रिकॉर्ड करेंगे? जब ट्रांजेक्शन आइडेंटिफाई कर लिया जाएगा, मतलब पहचान लिया जाएगा। आफ्टर दैट मेजर, वो ट्रांजेक्शन्स मॉनेटरी टर्म में होना चाहिए, पैसे की टर्म में होना चाहिए। व्हेन द ट्रांजेक्शन फुलफिल these two situations or conditions, then only the transaction will be recorded, तभी हम उसे बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे। और बुक्स में रिकॉर्ड करने के लिए सबसे प्राइमरी जो हमारी बुक होती है दैट इज कॉल्ड जर्नल। उसका एक चैप्टर अलग से है, तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन हम बाद में करेंगे।
अभी केवल हम ब्रीफ इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं अकाउंटिंग का, क्योंकि ये एक एक वर्ड एक पूरा चैप्टर है। तो रिकॉर्डिंग मीन्स टू रिकॉर्ड, और कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? जो बिजनेस की बुक्स होती हैं, दैट इज कॉल्ड जर्नल। आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन वी हैव टू क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग का मतलब होता है अलग अलग कर देना, सेपरेट कर देना। जैसे हमने ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड किए, व्हेन वी आर रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शन्स, it may be of the purchases, it may be of the sales, it may be of the expenses, it may be of the income. So there are so many transactions into the business. जब हम रिकॉर्ड करते हैं तो एक ही जगह रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, बट सपोज एट द एंड ऑफ द ईयर आपको पता करना हो कि मैंने टोटल परचेज कितना किया, तो प्रॉब्लम होगी। टोटल सेल्स कितना किया, तो भी प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? अकॉर्डिंग टू द नेचर ट्रांजेक्शन्स विल बी क्लासिफाइड। परचेजेस के ट्रांजेक्शन्स एक जगह रिकॉर्ड करेंगे, सेल्स के एक जगह रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंसेस विल बी ऑन द वन प्लेस एंड इनकम विल बी ऑन द अनदर प्लेस। तो ट्रांजेक्शन्स अकॉर्डिंग टू द नेचर विल बी क्लासिफाइड, उनको क्लासीफाई कर लिया जाता है और उनके लिए सेपरेट अकाउंट बना लिए जाते हैं। आफ्टर दैट समराइज। समराइज का मतलब होता है समरी बना लेना। फॉर एग्जाम्पल, मैंने अभी आपको बताया कि ट्रांजेक्शन्स तो हमने क्लासीफाई कर लिए। मान लीजिए पूरे साल में परचेजेस के 100 ट्रांजेक्शन्स थे, तो 100 ट्रांजेक्शन्स को हमने लिखा। सेल्स के 50 ट्रांजेक्शन्स थे, तो 50 ट्रांजेक्शन्स हमने सेल्स के लिखे। एक्सपेंसेस के 30 ट्रांजेक्शन्स थे, वो हमने लिखे। बट एनीवन ऑफ द यूजर ऑफ बिजनेस वांट टू नो कि पूरे साल में कितना परचेज किया हमने, तो प्रॉब्लम होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे? जितनी बार भी हमने परचेज किया उन सबका टोटल लगा लेंगे। टोटल लगाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल परचेजेस आ जाएगा। दैट्स व्हाई समराइज मीन्स टोटल ऑफ ईच एंड एवरी टर्म ऑफ अकाउंटिंग, जो हमने अकाउंट बनाए हैं उनका टोटल कर लेना। दैट टेल्स अस कि हमारे पास टोटल कितना परचेजेस हुआ, टोटल कितना सेल्स हुआ, ये हमें पता चलता है समराइज की हेल्प से। After that, interpreting, as you all know, what is the main and important role of accounting? That is to find out the profit or loss. So interpreting means to find out the profit or loss of the business at the end of the year. How it is calculated, it is a separate chapter. तो जब चैप्टर शुरू होगा तब मैं आपको बताऊंगा। अभी बेसिक हम पढ़ रहे हैं, तो इसके अंदर आपको बस इतना पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग में क्या क्या काम होता है। आफ्टर इंटरप्रेटिंग, कम्युनिकेटिंग। कम्युनिकेटिंग का मतलब होता है बताना। जब भी आपके बिजनेस का रिजल्ट आएगा तो क्या वो रिजल्ट आप किसी को बताएंगे? नहीं, बताना पड़ेगा, क्योंकि आप चाहते हैं कि जितने ज़्यादा लोगों को इसके बारे में पता चले उतने ज़्यादा लोग बिजनेस से जुड़ेंगे। जितना अच्छा प्रॉफिट होगा उतने ही ज़्यादा इन्वेस्टर्स हमारे पास आएंगे। तो कम्युनिकेट टू द यूज़र ऑफ द बिजनेस। जो बिजनेस के यूज़र्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इन्वेस्टर्स बिजनेस में पैसा लगाएंगे प्रॉफिट के बेस पे, तो उनको बताया जाएगा। लैंडर्स बिजनेस को लोन देते हैं। लोन किस बिहाफ पे देंगे? बिजनेस की परफॉर्मेंस, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, बिजनेस की प्रॉपर्टी अच्छी है, इसके बेस पे हमें लोन मिलेगा। सो देयर आर सो मैनी यूजर्स ऑफ द बिजनेस जिनको अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उनको हम ये सारी चीज़ें बताएंगे। सो दिस इज ऑल अबाउट द मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। सो वी हैव डिस्कस्ड नीड ऑफ अकाउंटिंग, क्यों जरूरत होती है हमें? प्रॉफिट लॉस पता करने के लिए ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करना होता है। सेकेंड, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग टेल्स अस ऑल द ओवरव्यू ऑफ द अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग में क्या क्या किया जाता है, ये सारा हमें अकाउंटिंग बताती है। आफ्टर दैट, इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, कि अकाउंटिंग के फीचर्स क्या क्या हैं। सबसे सिंपल टॉपिक होता है फीचर्स। यदि आपने किसी भी चीज़ की डेफिनेशन पढ़ ली, मीनिंग पढ़ ली, देन फीचर्स ऑफ दैट थिंग्स आर वेरी सिंपल, क्योंकि उसके जो भी फीचर्स होते हैं वो उसकी डेफिनेशंस में ही कवर हो जाते हैं। तो इसके फीचर क्या होंगे? इसका फीचर होगा अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, जो मीनिंग में आ चुका। सेकंड फीचर क्या होगा? आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन, जो भी मीनिंग में आ चुका। थर्ड वन आप लिख सकते हैं मेजरिंग द ट्रांजेक्शन्स इन टर्म्स ऑफ मनी, मनी टर्म्स में हम मेजर करते हैं।
फिर हम कर सकते हैं रिकॉर्डिंग एंड क्लासीफाई द ट्रांजेक्शंस को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्लासीफाई कर सकते हैं. These are the features of accounting. Means that whenever you are writing the feature, just think about the definition or meaning of that term. उसके जो keywords होंगे that will show the feature of that thing. Is it clear? So this was your third topic, that is features of accounting. Next topic जो कि हम डिस्कस करेंगे that is bookkeeping, accounting and accountancy. The fourth point that we'll discuss, that is bookkeeping. Second one is accounting and third one is accountancy. Your book name also is accountancy. Okay, so bookkeeping, the name suggests keeping the books, books को रखना. तो बुक्स कीप करने का मतलब क्या हुआ? दिस इज द प्राइमरी वर्क ऑफ अकाउंटिंग, जो एक नॉर्मल नॉलेज वाला पर्सन भी कर सकता है. तो अब बताइए बुक कीपिंग में नॉर्मल नॉलेज वाला वर्क क्या होगा जो एक नॉर्मल नॉलेज वाला पर्सन कर सकता है? दैट इज द फर्स्ट वन, आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन. देखिए जो डेफिनेशन पढ़ी है वो ही बार बार रिपीट हो रही है आपके कि जो वर्क किया जाना है हमारा. तो बुक कीपिंग में प्राइमरी वर्क क्या होगा? द प्राइमरी वर्क इज आइडेंटिफाई द ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई करना. द सेकेंड टर्म इज मेजरिंग. द सेकेंड टर्म मेजर करना इन टर्म्स ऑफ मनी. दिस इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ बुक कीपिंग. थर्ड वन इज रिकॉर्डिंग. रिकॉर्डिंग भी बुक कीपिंग का पार्ट होता है, क्योंकि ये जो वर्क होते हैं आइडेंटिफाई करना, मेजर करना, रिकॉर्ड करना और क्लासीफाई करना, ये एक बेसिक लेवल के वर्क होते हैं जिनको अकाउंटिंग का थोड़ा बहुत नॉलेज होता है वो इजीली ये वर्क कर सकता है. सो इट इज़ डिवाइडेड इन द डिफरेंट पार्ट. सो बुक कीपिंग इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाई, ट्रांजेक्शन को पहचानना. द सेकेंड वन इज मेजर, दैट इज इन टर्म्स ऑफ मनी. एंड द थर्ड वन इज रिकॉर्डिंग, ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करना. एंड द फोर्थ वन इज क्लासीफाइंग, अकॉर्डिंग टू नेचर क्लासीफाई द ट्रांजेक्शंस. जैसे मैंने बताया था आपको परचेजेस, जैसे मैंने आपको बताया था सेल्स, जैसे बताया था एक्सपेंसेस, जैसे बताया था इनकम. सो दीज फोर प्राइमरी वर्क ऑफ अकाउंटिंग कम्स अंडर बुक कीपिंग. आफ्टर दैट द सेकेंड थिंग इज अकाउंटिंग. अकाउंटिंग इज द कंप्लीट प्रोसेस in which we have to find out the profit or loss. So earlier 4 steps we have done in bookkeeping. So what are the remaining steps? The remaining steps are summarizing, to summarize the transactions. Then after that interpreting, after that communicating. So these last steps comes under accounting. And then what is accountancy? Accountancy is the combined knowledge of bookkeeping and accounting. Means that with the help of accountancy a person can take decisions regarding the future and make planning for the future. accountancy में क्या किया जाता है? जो भी हमने प्रैक्टिकल जो चीज़ें की उनसे क्या रिजल्ट निकला, व्हाट वाज द रिजल्ट, एंड हमें फ्यूचर में क्या प्लानिंग करनी है, उससे क्या हमें डिसीजन लेना है, ये सारा काम किसके अंदर होता है? इट कम्स अंडर अकाउंटेंसी. सो वी कैन राइट इट द प्लानिंग फॉर द फ्यूचर एंड डिसीजन मेकिंग ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग डेटा. जो अकाउंटिंग के डेटा हमारे पास आएंगे उन डेटा से हम उसकी प्लानिंग करेंगे और फ्यूचर की डिसीजन करेंगे. ये सारे पार्ट किसके अंदर आते हैं? अकाउंटेंसी के अंदर आते हैं. सो वी हैव डिस्कस नीड फॉर अकाउंटिंग, देन आफ्टर मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, देन आफ्टर फीचर्स ऑफ अकाउंटिंग, आफ्टर दैट we have taken the difference between bookkeeping, accounting and accountancy. The fifth topic, that is types of accounting. Types of accounting. In types of accounting, first accounting is financial accounting. Financial
accounting. Okay, if I talk about the financial accounting, so generally in 11th class you will discuss only financial accounting. Financial accounting means that tells us about the profit or loss and the financial position of the business, कि हमने पूरे साल के एंड में कितना प्रॉफिट लॉस अर्न किया या सफ़र किया, ये सारी चीज़ें फाइनेंशियल अकाउंटिंग से पता चलती हैं. या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर व्हाट इज़ आवर फाइनेंशियल पोजीशन, मीन्स दैट व्हाट इज़ द एसेट, what is the liability and what is the capital. These all things comes under financial accounting that tells us about the profitability or the financial position of the business. After that, second accounting is cost accounting. Cost accounting. Cost accounting helps us to find out the cost of each product that we are purchasing or producing or selling. जो भी गुड्स हम बना रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, हमें उसको सेल करना है, तो उससे पहले क्या पता होना चाहिए हमें उसका कॉस्ट प्राइस. फॉर एग्जाम्पल आई एम हैविंग दिस पेन और मैं इस पेन को सेल करना चाहता हूँ, बट सेल करने से पहले मुझे क्या पता होनी चाहिए इसकी कॉस्ट प्राइस, कि मेरे ये पेन सारे खर्चे मिला के कितने रुपए का पड़ा था. जैसे मैंने 10 रुपीज़ का पेन खरीदा, 1 रुपीज़ कोई ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस लग गए, 1 रुपीज़ कोई वेजेस लग गए, तो ये पेन मेरे पड़ा 12 रुपीज़ में. दैट इज़ द कॉस्ट ऑफ द पेन. और यदि मैं इसको 15 में सेल करता हूँ, दैट मीन्स आई हैव अर्नड 3 रुपीज़ प्रॉफिट. मैंने 3 रुपये प्रॉफिट कमा लिए. तो सेल करने से पहले हमें क्या पता होना चाहिए उसका कॉस्ट प्राइस, सो दैट वी कैन सेल. हम उसको सेल भी कर सकते हैं और उसका प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर सकते हैं. सो थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. थर्ड वन इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. नेम सजेस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग. देखिए मैनेजमेंट इज एवरीवेयर. आप कहीं भी चले जाइए, सभी जगह बिना मैनेजमेंट के काम नहीं होता है. तो अकाउंटिंग में भी मैनेजमेंट होता है. कैसे होता है मैनेजमेंट? जो भी हमने अकाउंटिंग से रिजल्ट निकाला, जो प्रॉफिट और लॉस निकाला, जो हमने हमारी फाइनेंशियल पोजीशन बनाई, उसका जो डिसीजन है कि वो सही है, गलत है, कोई भी उसके अंदर कमी है, वो कौन डिसाइड करता है? मैनेजमेंट. और उसी से रिकॉर्डिंग वो प्लानिंग करता है फ्यूचर के लिए, कि ऐसी जो प्रॉब्लम्स आई, जो लॉसेस हुए, वो फ्यूचर में ना हो, या फिर हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो कम हैं, हम क्या ऐसा करें ताकि हमारे जो प्रॉफिट्स हैं वो बढ़ें. तो ये सारी की सारी चीज़ें किसके अंदर होती हैं? मैनेजमेंट अकाउंटिंग में. सो बेसिकली मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज रिलेटेड टू मेक प्लानिंग एंड डिसीजन फॉर द फ्यूचर. सो दिस इज ऑल अबाउट द मैनेजमेंट अकाउंटिंग. द नेक्स्ट अकाउंटिंग, दैट इज टैक्स अकाउंटिंग. टैक्स अकाउंटिंग. So what is tax accounting? Tax accounting basically related to find out the tax which is always payable to the government. क्योंकि टैक्सेस का जहाँ भी नाम आ गया वहाँ समझ लेना कि हमें गवर्नमेंट को पे करना है. टैक्सेस इज टेकन बाय द गवर्नमेंट. ठीक है. तो टैक्स अकाउंटिंग क्या हेल्प करेगी हमारी? जो भी हम गुड्स बेचते हैं, जो भी गुड्स हम परचेज करते हैं, उन पे कितना टैक्स लगा, कितना टैक्स हम पे कर चुके, कितना टैक्स हमें और पे करना है. सो ऑल द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द टैक्सेस कम्स अंडर टैक्स अकाउंटिंग, कि हमारा कितना टैक्स बन रहा है, कितना टैक्स हम पे कर चुके, कितना और टैक्स हमें आगे पे करना है. सो ये चीज़ें हमें पता पड़ती हैं विद द हेल्प ऑफ टैक्स अकाउंटिंग. द नेक्स्ट वन इज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग. सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग क्या होता है? इन दिस टाइप ऑफ अकाउंटिंग वी कम टू नो दैट बिजनेस अर्न्स प्रॉफिट फ्रॉम द सोसाइटी. बिजनेस प्रॉफिट कहाँ से कमाता है? सोसाइटी से कमाता है. तो क्या बिजनेस की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती सोसाइटी के लिए, कि जहाँ से हम पैसा कमाते हैं उस सोसाइटी के लिए हमें कुछ करना चाहिए? बिजनेस क्या ऐसा कर सकता है सोसाइटी के लिए
कि उसका कुछ सोशल वेलफेयर भी हो जाए और कस्टमर का या सोसाइटी का उस बिजनेस के प्रति कुछ अच्छा नाम भी बन जाए। तो वो क्या करेगा ऐसा, वो करेगा अच्छी क्वालिटी का गुड्स अच्छी क्वालिटी का दे सकता है। सेकंड, आफ्टर सेल सर्विस, कोई भी गुड्स बेचा उसमें कुछ शिकायत आई तो जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन करवाया जाए। थर्ड थिंग, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, बिजनेस के कारण एनवायरनमेंट का जो भी नुकसान हो रहा है वो नुकसान ना हो पाए, तो उसके प्रोटेक्शंस के लिए जो भी मेजर्स यूज़ किए जा सकते हैं उन मेजर्स को यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी वेज ऑफ गिविंग सोशल वेलफेयर बाय द बिजनेस टू द सोसाइटी। देयर आर सम एग्जांपल्स जो मैंने आपको बताया अभी। गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, एम्प्लॉयमेंट दे सकता है बिजनेस। ऐसा तो नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट देने के लिए नेपाल से बुलाएगा बिजनेस। जहाँ जिस सोसाइटी में बिजनेस काम कर रहा है उसी सोसाइटी से वो एम्प्लॉयज़ लेगा ताकि उसके बिजनेस में सपोर्ट भी रहे और एक सोशल वेलफेयर भी हो जाए। ठीक है, सो दीज ऑल थिंग्स कम्स अंडर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो भी सोशल वेलफेयर का हम काम करते हैं दैट कम्स अंडर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो इसकी भी हमें अकाउंटिंग करनी जरूरी है कि हमने कितना पैसा खर्च किया सोशल वेलफेयर के लिए, वो सारी चीज़ें हमें पता होनी चाहिए। सो दीज आर the total 5 types of accounting. So today we have discussed these 5 topics of your first chapter, introduction meaning of accounting. उसके अंदर हमने क्या क्या पढ़ा, need for accounting, second हमने पढ़ा meaning of accounting, third we have discussed features of accounting, after that differentiate between bookkeeping, accounting and accountancy, and the last topic we have discussed types of accounting. Okay, so the remaining half chapter will do in our next class. Till you have to study these all the topics, revise these things clearly. Okay, so thank you very much.